ادا کروں گی جس نے میری روز آتے ہیں بولتے بولتے، میں بھی شکریہ اس کا ادا کروں گی جس نے مجھے پاک دامن ثابت کر دیا۔ حضور سے بغض و عداوت رکھتے تھے، بات پھیلا دی، ارے نبی کی بیوی غیر کے ساتھ چلی گئی۔ اوہو۔ ہیلو گائز، ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں۔ میرا نام ہے رام، اور گائز آج میں جو ریئیکشن کرنے والا ہوں مولوی جو ہیں، ایک کیا نام ہے ان کا، مولوی جرجس انصاری کر کے ہیں ورسس مفتی سلمان اجری صاحب، جن کے اکثر ویڈیوز میں ریئیکشن کرتا ہوں۔ آپ لوگ دیکھتے بھی، آپ لوگوں کا اتنا پیار ملتا ہے، آپ لوگ obviously آپ بولتے بھی ہو کمنٹ میں کہ بھائی آپ بہت ویڈیوز بناتے ہو سلمان اجری صاحب کے۔ میں اس لیے بناتا ہوں کیونکہ ان کا کانسیپٹ بہت زیادہ کلیئر ہے، صحیح سے بولتے ہیں ہر ایک مدعے کو لے کے، چاہے اسلام ہو، چاہے اپنا کیا بولتے ہیں مسلم کمیونٹی کو لے کے، اوورآل پورا بہت اچھے سے بولتے ہیں۔ لیکن یہ جو مولانا جرجس انصاری ہیں، یہ اپنے بات کو بہت الگ طریقے سے الگ الگ نئی چیزیں ایڈ آن کر کے، کچھ مرچ مسالہ بنا کے اس کو پورا کا پورا اسپائسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی بفل ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیتے ہیں کیا سب ہے اس ویڈیو کے اندر۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگے ویڈیو، تو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسی ریئیکشن ویڈیوز بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے ریئیکشن میں سٹارٹ کر لیتا ہوں بنا کسی دیری کے، لیٹس پلے۔ جہاں تک علم غیب کا تعلق ہے میرے بھائیوں، آپ بھی وہی مانتے ہو جو ہم مانتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم صرف کہتے ہو اتنا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا، ما کان وما یکون کا علم تھا۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک شجر حجر، سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، درختوں میں کتنے پتے، سب کا علم تھا۔ یہ تم عقیدہ رکھتے ہو، لیکن جب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ، جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ رہی تھی اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جب مذاق اڑایا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اتنے پریشان رہے، آپ کہہ سکتے تھے آئے عبداللہ ابن ابی تم جھوٹ بول رہے ہو، ہماری بی بی عائشہ پاک دامن ہے، پاک دامن، کیونکہ مجھے علم ہے، میں علم غیب رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے۔ نبی کی بی بی اما عائشہ کو پتا چلا تو گھر سے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول اپنی بی بی کے پاس گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، تمہارے بارے میں جو افواہیں اڑ رہی ہیں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم اس میں ملوث ہو یا نہیں۔ ایک نبی اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہے اور تم کہتے ہو عالم الغیب، عالم الغیب، ذرا مجھے بتاؤ یہ کون سا علم غیب تھا؟ نبی اپنی بیوی کے دہانے پر اور سراہنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بیوی تمہارے بارے میں ایسے الزام، مجھے بتاؤ۔ حضرت عائشہ ایک ہی جواب دیتی ہے، اے اللہ کے رسول، اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بالکل پاک دامن ہوں، تو ابھی آپ فوراً میری بات مان لیں گے، کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے اور لوگوں نے اتنی اڑا دی ہے، اتنی اڑا دی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کا دل جم گیا ہے۔ ابھی میں کہہ دوں ہاں مجھ سے یہ کام ہوا ہے تو ابھی آپ مان لیں گے، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے نہیں کیا اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، تب بھی آپ کو بھی اتنی جلدی یقین آنے والا نہیں، کیونکہ لوگوں نے اس کے خلاف بہت سی باتیں آپ کے دل میں بٹھا دی ہیں۔ میرے معاملے میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، بس میرا معاملہ بہت جلدی اللہ پر منکشف کر دے گا، اللہ ہی آپ کو باخبر کر دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ امید نہیں تھی، اتنا تو میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے نبی کو خواب میں دکھلا دے گا کہ میں پاک دامن ہوں، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ اللہ میری برات اور پاک دامنی کے لیے جبرائیل کو بھیج کر 18 آیتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ کے رسول وہی بیٹھے ہوئے، پیشانی پہ پسینہ آنے لگا۔ اما عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول پر جب وحی آتی تھی تو ایسا ہی حال ہو جاتا تھا، سخت سردیوں میں پسینہ آنے لگتا تھا۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، پسینہ ٹپک رہا ہے، آپ بوجھل، آپ بھاری سے ہو گئے، آپ کا سر بوجھل ہو گیا۔ حضرت عائشہ سمجھ رہی ہیں، ابو بکر صدیق گھبرا گئے، ان کی بیوی یعنی اما عائشہ کی ماں گھبرا گئی، پتہ نہیں جبرائیل کون سی خبر لے کے آ رہے ہیں، پتہ نہیں میری بیٹی کے بارے میں کیا اللہ بتائے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بالکل نہیں گھبرائی، اس لیے کہ جب میں نے یہ کام کیا ہی نہیں تو میں کیوں گھبراؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب 18 آیتیں نبی کے اوپر نازل ہو چکی
तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हुए उठे, कहने लगे आयशा खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी पाक दामनी का ऐलान कर दिया, मुझे बाखबर कर दिया, ये आयतें तुम्हारे बारे में नाजिल हुई। हजरत आयशा की मां कहने लगी, है आयशा उठो, जल्दी उठो और अल्लाह के रसूल का शुक्रिया अदा करो। तुम क्या जानो कादरी साहब, तुम्हारे चेले और चपाटे क्या जाने, तुमने इनको इतना बोलते बहुत बढ़िया, बोलता मतलब बहुत ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस है इनको एक्चुअली। तुम्हें बताता हूँ, हजरत आयशा की माँ कह रही है तुम्हारे बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई, अल्लाह ने पाक दामनी का ऐलान कर दिया, आयशा तुम देखो उठो और नबी का शुक्रिया अदा करो। हजरत आयशा ने यह कहकर ठुकरा दी अपनी माँ की बात, मैं नबी का क्यों शुक्रिया अदा करूं, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का क्यों शुक्रिया अदा करूं, ये भी तो उन्हीं लोगों के बातों में आ रहे थे, मैं तो शुक्रिया उस जात का अदा करूंगी जिसने मेरी रोज आते हैं बोलते बोलते, मैं भी शुक्रिया उसका अदा करूंगी जिसने मुझे पाक दामन साबित कर दिया। बीवी रसूलुल्लाह के शुक्रिया को रिजेक्ट कर रही है और अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही है, तुम गौर से पढ़ो तुम्हें सब वहाबी नजर आएंगे। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने जो अहकाम फरमाए, देखें चंद अहकाम मैं बता देता हूं। इस सूरे में जो है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारात, आपकी पाकी का भी जिक्र आया है। मुनाफिकीन ने आप पर तोहमत लगाई थी। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद में थे, ग़ज़वे बनी मुस्तलक, वहां से वापसी के वक्त उम्मुल मोमिनीन साथ में हुआ करती थी, कोई ना कोई हुजूर की ज़ौजा साथ जाती थी। तो वापसी के वक्त जब उम्मुल मोमिनीन की उम्र बहुत छोटी थी, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र तकरीबन 13-14 साल के आसपास थी। वापसी के वक्त, जिहाद से वापसी के वक्त रास्ते में एक जगह काफिला रुका, तो ऊंट के ऊपर एक कजावा यानी एक खीमा लगाया जाता था अज़वाज मुतहरात के लिए, उम्मुल मोमिनीन के लिए पर्दे का इंतजाम होता था। वो कैसा होता था, एक छोटा सा हुजरा, एक झोपड़ी टाइप, उसे उठा करके रखते थे, बांधते थे ऊंट के ऊपर, और फिर जहां ऊंट बैठ जाए वो उठा करके फिर जमीन पर रखा जाता था। तो कजावा उठा करके जमीन पर रखा गया। रात को जो है वहां क़याम हुआ थोड़ी देर के लिए। उम्मुल मोमिनीन अपनी हाजत के लिए उतरी, उनका सोने का हार जो है कहीं गिर गया था। अच्छा। तो वो ढूंढने के लिए निकली, तो इत्तेफाक से जो है अचानक वापसी का ऐलान हो गया कि चलो। तो सहाबा जो उठाते थे कजावा, वो खीमा, वो झांक करके देखते नहीं थे कि अंदर है या नहीं। कजावा उठाया गया, ऊंट पर रख दिया गया। उनके दिल में ये था उम्मुल मोमिनीन अंदर हैं, बैठी हैं। जबकि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो अपने गले का हार कुछ ढूंढने के लिए बाहर निकली हुई थी। काफिला चल पड़ा, चला गया काफिला। हजरत आयशा वापस आकर के देखी, कुछ भी नहीं, निशान भी नहीं, सब जा चुके। तन्हाई रात की, कोई वहां पर रास्ते में नहीं है। तो एक जगह ओट में बैठी, नींद लग गई आपको, सो गई वहीं पे। उस वक्त होता यह था कि काफिले जब चलते थे तो किसी एक सहाबी को पीछे छोड़ दिया जाता था। वो पीछे से चलते हुए आते थे, काफिले का कुछ भी गिरा हुआ सामान हो तो वो उठा करके ले आते थे। तो वो पीछे से चलने वाले सहाबी, काफिले से उनका डिस्टेंस होता था थोड़ा सा। हजरत सफवान रज़ियल्लाहु ताला वो पीछे से आ रहे थे। सुबह सुबह का वक्त था, उन्होंने देखा कि यहां कोई खातून सोई हुई। करीब जाकर के देखा तो कहने लगे अल्लाहु अकबर, ये तो उम्मुल मोमिनीन है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के करीब पहुंचे तो बेदार हो गई। पर्दा किया, पूछा कि मां यहां कैसे? कहने लगी मैं फला चीज ढूंढने के लिए निकली थी, काफिला चल पड़ा, मैं रात के अंधेरे में अकेली कैसे चलती? हजरत सफवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथ सफर में उनको लेकर चले। मदीने पहुंचने तक काफिले वालों को पता ही नहीं था कि उम्मुल मोमिनीन है नहीं कजावे में। बाद में पता चला कि नहीं है। पूछा गया कहां रह गई? फिर अभी ढूंढना शुरू भी नहीं हुआ था कि हजरत सफवान के साथ उम्मुल मोमिनीन आ गई मदीने में। बस इतनी बात थी कि मुनाफिकीन जो थे, जिनके दिलों में कुड़न थी, जलन थी, हुजूर से बुग़्ज़ और अदावत रखते थे, बात फैला दी, अरे नबी की बीवी गैर के साथ चली गई। ओहो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी सफवान के साथ रात गुजार कर आई है। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़ी बड़ी बातें
माँ आयशा सिद्दीक़ा की शान में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास भी ये बातें आने लगी। हुजूर ने पूछा, ऐ आयशा क्या मामला है? उन्होंने बताया ये मामला है। उम्र भी कम थी हज़रत आयशा की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई लोगों से ये बातें सुनने में आईं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कुछ बात ही नहीं की। वो वक्त बड़ा डिफिकल्ट था हज़रत आयशा के लिए, बहुत डिफिकल्ट था। आप कहती हैं कि मैं रो रो करके आंखें सुजा चुकी थी। हुजूर भी अब बात नहीं कर रहे थे। कहते हैं, ऐ आयशा ये मामला मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। हज़रत आयशा अपने घर चली गई, मैके चली गई। उनके बाप अबू बकर सिद्दीक भी बात नहीं कर रहे हैं रदियल्लाहु अन्हु, कुछ नहीं कह रहे। हज़रत आयशा कहती दिन रोती थी, रात रोती थी, ऐ अल्लाह मेरा मामला सबके सामने साफ फरमा दे, क्योंकि लोगों ने इल्जाम लगाया है, तोहमत लगाई, इज्जत की बात है। लेकिन मेरे आका जानते थे, क्योंकि वो आलिमुल गैब है, हुजूर जानते थे। लेकिन ये एक आजमाइश चल रही थी। देखें कभी कभार सब्र की जरूरत होती है, ये मेरे आका की जिंदगी से मिलती है चीज। हज़रत अबू बकर को छोड़ करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबा को बुलाना शुरू किया। हज़रत उमर से पूछा, उमर आयशा के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनने को आ रही हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? आगे बढ़ते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में आपके घर वालों के बारे में यूं फरमाया, हर तरह की बुराई को आपके घर से दूर किया है। अगर आयशा के अंदर बुराई होती तो कभी मौला आपको निकाह का हुक्म ही नहीं देता, हो ही नहीं सकता। हजरत उस्मान को बुलाया, कहा आपका क्या ख्याल है? कहते हैं देखें कितनी प्यारी बात है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपका साया जमीन पर नहीं डाला ताकि किसी का पैर ना पड़ जाए, रसूल के साए पर किसी का पैर ना पड़ जाए। क्या वो मौला आपको ऐसी बीवी देगा जिसके अंदर गलाजत हो ही नहीं सकता। या रसूल अल्लाह, हजरत अली से पूछा आपका क्या ख्याल है? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां तक आयशा की बात है, लोग कह रहे हैं ऐसे कि आपके घर वाली, आपकी खातून, आपकी बीवी ऐसी। हमारा तो अकीदा यह है कि रब ताला आपके जिस्म पर तो मक्खी भी नहीं बैठने देता, आपके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती। आयशा अगर नापाक हो तो आपके घर में मौला कैसे रखता? नहीं हो सकता। साहबा ने बड़ी फजीलतें बयान की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो उस वक्त इन सब से पूछ रहे थे, ये भी जो है ईमान और निफाक की बात थी। कुछ लोगों को बुलाया और बारी बारी पूछ रहे थे। पूछा आपका क्या ख्याल है? तो एक साहब ने कहा, हाँ लोग कह रहे हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या मालूम, अंदर की बात है। यहां समझ में आ जाता है, दिल में जो चीज है निकल आती। ये ईमान की परख हो रही थी, यहां पर जांच हो रही थी। ईमान इसी को कहते हैं, रसूल की जात से कोई चीज हो तो नापाक हो ही नहीं सकती। अकीदा ये कामिल होना चाहिए। तो जितने लोगों ने ये कहा था, पहचान लिए गए वो कि किसके दिल में क्या है। हाँ लोग तो कह रहे हैं, और आयशा रात को गई, क्यों गई थी, ऐसे ऐसे बातें भी कुछ लोगों ने की। लेकिन जो सहाबा थे, अहले ईमान थे, उनको अल्लाह ने मजबूत ईमान अता किया था। चंद दिन ऐसे ही गुजरे, एक महीना गुजर गया, तब अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन के जरिए आयतें भेजी। अल्लाह फरमाता, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। जो लोग तोहमत लगाएं आपके घर वालों के मुतालिक, ए महबूब उसको आप बुरा ना समझें, आपके हक में बेहतर ही है, बेहतर है। क्योंकि सबों के दिलों की कुड़न मौला ताला जाहिर करना चाहता था। पता ये चला कि नबी का घराना कसौटी है ईमान को नापने की। जो इस तरफ मोहब्बत के जुमले कहा वो ईमान वाला है, और जिसने शक भी किया वो मुनाफिक है। अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम, मैं तो उनके लिए दर्दनाक अजाब रखा हूं, बड़ा अजाब। अब रही बात, ये इन पर जो लगाया गया था, आयशा बरी है इन तमाम चीजों से। अल्लाह ने हुजूर के घराने की पाकी कुरान में बयान की। अब सुनिए, जब ये आयतें नाजिल हुई
तो हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़ते हुए आए आयशा के पास। 1 महीने के बाद हजरत आयशा कहती है मेरी आंखें सूज गई थी, इतने दिन तक हुजूर से भी मुलाकात नहीं हो रही थी। कहा आयशा मुबारक हो, अल्लाह की आयतें उतर गई तुम्हारी शान में, मौला ने पाकी बयान कर दी, जाओ जल्दी हुजूर से मिलो। उम्र कम थी, महबूबाना अंदाज भी था। कहा नहीं, मैं उनसे पहले नहीं मिलूंगी, पहले मैं मेरे रब का सजदा करूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लेने आए हजरत आयशा को और उसके बाद मोहब्बत से अपने घर में बिठाए। अब उसके बाद फरमाया आयशा, हुजूर अगर चाहते तो पहले ही दिन कह देते मेरी आयशा पाक है, लेकिन लोग ये कहते अपने घर वाले की बात कर रहे हैं, अपनी बीवी की पाकी तो हर कोई बोलेगा। ए आयशा, मैं ये चाहता था कि तुम्हारी बारात में ऐसी चीज उतरे कि कयामत तक लोग उसको तिलावत करते रहे। हाय, आज देखें करोड़ों इमाम हों, करोड़ों मस्जिदें हों, हर जगह जहां पर भी तिलावत होगी हमारी मां की पाकी भी बयान हो रही होगी। आयशा सिद्दीका, अफीफा, तय्यबा, ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पाकी भी कुरान ने बयान किया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये फरमाते हैं, अल्लाह ने तेरे हक में कुरान की आयतें ऐसी उतारी कि सुबह क़यामत तक अब तेरी पाकी ईमान वाले बोलते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला निफाक और मुनाफिकीन के शर से हमारी हिफाजत फरमाए। तो गाइज ये वीडियो थी बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि इसके अंदर हजरत आयशा के बारे में बताया जो कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की बीबी थी। उनके ऊपर कुछ लोगों ने ऐसी लालचनें लगा दी कि ये किसी के साथ रात गुजार के आ चुकी हैं, जिसको लेके इतना सारा एक्सप्लेनेशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर लोगों ने उनको समझाया भी कि तुम खुद एक अल्लाह के भेजे हुए बंदे हो, कि तुम्हारी छाँव यानी कि तुम्हारी जो परछाई रहती है वो हम लोगों को नहीं दिखती कि किसी का पैर पड़ जाए उस पर, इसलिए तो ये तुम्हारी बीवी ऐसे नापाक कैसे हो सकती है। तो बहुत अच्छा एक अलग ही कॉन्सेप्ट आप मुझे सीखने को मिला या जानने को मिला। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जरूर अपना कुछ ना कुछ आप विचार कमेंट में कर सकते हैं। आपकी कोई भी पसंद की वीडियो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा नेक्स्ट किसी रिएक्शन में, तब तक सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।